Assalamualaikum, dear all participants. Welcome to the platform of National Productivity Organization. Today is 27th of December 2023. Today, our topic of training will be critical thinking and problem solving. Before start of our presentation and training, we will start it with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. So our today training topic is critical thinking and problem solving. We have a resource person whose name is Dr. Sajid Iqbal, and I will let introduce a little bit about him. Dr. Sajid Iqbal is a gold medalist, CICOPS fellow, IEEP fellow, and senior member of IEEE USA. Was awarded the Young Investigator Award at 2018 Sage Assembly USA and the CICOPS Scholarship Italy. He is a certified TRACE Level 1 instructor and Level 2 practitioner from Malaysia. Additionally, he has completed some course on cognitive skills, self-efficacy skills, collaboration skills, and management skills courses from Harvard Business School USA, IEE USA, and Masterclass USA. Dr. Sajid is a registered resource person of PEC and master trainer of PTEC and Toyota for conducting trainings. He is passionate about developing people and promoting an innovation culture based on the knowledge economy in Pakistan. Dr. Sajid has conducted training sessions on trades, innovation and creativity, critical thinking and problem solving, work ethics, time management, and writing skills in national institutes, for example, LCCI, PASCO, NESPAC, KINOP, PTEC, PHEC, MPDD, Toyota, PEF, NUST, University of Engineering and Technology Lahore, UET Texla, Government College University Faisalabad, UET Peshawar, Quest, IEEP, IEP, PEC, NTDC, and international institutes like UNIPIF, Italy, Unimod, Italy, Malaya, Malaysia, and ICTP, Italy. Furthermore, Dr. Sajid Gunakar in a Basme Tariq Aziz show on PTV. So this is a little bit introduction about him. So uh, before any day, before any delay, I will request Dr. Sajid Iqbal to start the session. Thank you, sir. Now over to you. जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और उसके अलावा उसके बाद फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस की जो सारी टीम है, और स्पेशली मिस इकरा ने हमें फैसिलिटेट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया कि आज यहाँ दिसंबर की इस क्या कहना चाहिए सर्द मौसम में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ऑलरेडी जो कॉलीग्स हैं उन्होंने कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड की होगी, कोई किताब पढ़ी होगी, कोई ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किया होगा। तो जस्ट आप लोगों से एक जैसे क्या कहिए, शुरू में आगाज में थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए अगर मैं यही क्वेश्चन करूं, तो हमारे पास ज़ाहिर है जूम पे चैट बॉक्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहां आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं ये सवाल शेयर करूं आप लोगों से कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ऑलरेडी आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की हो,
तो कोई शेयर करेगा जी, कोई कॉलीग? चैट बॉक्स में आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक तो यह कि मेरी इधर आवाज आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और साथ मेरी स्लाइड भी नजर आ रही हो। जी, कोई कॉलीग जी? फॉर्मल ट्रेनिंग तो ऐसा नहीं की, लेकिन अदरवाइज आइडिया है। और अक्सर हमारी होती हैं ऑफिशियल ट्रेनिंग होते हैं डिपार्टमेंट की, उसमें ये एलिमेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। चलिए ठीक है सर, थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन। ये भी एक क्या कहिए, बात करने के लिए जरूरी होता है जी, स्मॉल टॉक। अक्सर बच्चों के साथ अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं बात करता हूँ कि स्मॉल टॉक क्या है, तो मुझे फिर जाहिर है अक्सर लोगों के जवाब डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है लोग रेलेवेंट जवाब भी देते हैं। तो अच्छी बात है जी, मिलकर हम सीखते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है, अगली स्लाइड्स में मैं उस पे उसकी तरफ भी इशारा करूंगा। तो आई एम श्योर इस पे बात होगी। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे जाहिर है हमें जब भी मौका मिले कोई ट्रेनिंग सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। किताब पढ़ने का मौका हो तो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ले सर, आगाज करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट सी वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑलरेडी आई एम श्योर कि वही सोशल मीडिया आप भी कंज्यूम कर रहे हैं जो मैं देखता रहता हूँ, तो ये वीडियो आपने देखी होगी। तो इस वीडियो में भी बेसिकली जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनकी तरफ इशारा किया गया है। तो मिलकर देखते हैं जी। और नहीं सर, आइडिया यही है कि जी अक्सर हम सारे अ, रोजाना दिन में कई जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में भी एक बच्चे ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जो जो शायद जो मेरी उम्र का बंदा बैठा हुआ था वो सॉल्व नहीं कर सका। तो बहरहाल अपने तई चाहे वो किसी भी उम्र का अ, क्या क्या कह लीजिए बच्चा हो, वो इंसान दिन में कई प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। अच्छा साहब, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उसमें यह है कि जी मैं यहाँ पर इन तमाम इदारों का बड़ा मशहूर हूँ। मैं यूनिटी की प्रोडक्ट हूँ और उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मुझे जाहिर है फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉलेज किया और प्लेटफॉर्म दिया कि उनके प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने का मौका मिला। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है चल पड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्लेटफॉर्म पे भी हम आपस में बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जी अपने वतन में भी ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी होता है कि आप मुख्तलिफ इदारों के साथ लोगों के साथ मिलें और एक डाइवर्स ऑडियंस तक पहुंच सकें। तो सिमिलरली जो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं या क्या कह लीजिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक IEEE, वो भी आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं। और यहाँ मैं अक्सर बच्चों से अपने पार्टिसिपेंट से शेयर करता हूँ कि ICTP का क्या कहिए तमाम पाकिस्तानियों को एटलीस्ट जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के हैं या वैसे भी थोड़ा सा शौक रखते हैं पाकिस्तान के बारे में जानने का, उन्हें ICTP का जरूर पता होना चाहिए। तो कोई कोलीग बताएगा जी आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं कि ICTP कहाँ है और ये ICTP स्टैंड्स फॉर व्हाट, ताकि फिर मैं बात को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं। जी चैट बॉक्स में जी जरूर लिख दें। ये भी जरा एक इंटरेक्शन का अच्छा मीडियम है। हाँ जी, अजहर अली साहब ने तो कहा जी मुझे कोई पता नहीं है।
कोई बात नहीं जी, हम यहाँ इकट्ठे किस लिए हुए हैं? इसी मकसद के लिए कुछ चीज़ों को हम रिफ्रेश करें, और कुछ चीज़ें जो शायद हमें पता नहीं है उनका भी पता करें। तो अजहर अली साहब और मुदस्सर साहब, सर ये आईसीटीपी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो ये सर त्रिएस्ते इटली में है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने शायद इसको वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी, अल्लाह आपका भला करे। जी नाम बताएंगे सर आप? आबिद रशीद। आबिद रशीद साहब, सर बहुत शुक्रिया सर। मैं इसीलिए कि अभी जरा खबरें हम सुने ना, तो कहीं अल्लाह रहम करे धमाका हो जाए या कोई गलत काम हो जाए ना, तो हम पाकिस्तानी थोड़ा घबरा सा जाते हैं कि ये कहीं वो पाकिस्तानियों पे इल्जाम ना लग धर दें या या मुसलमानों पे। हमें वो मतून ना करें। तो वैसे लगता है दुनिया में सारे शायद बुरे काम वो हम ही करते हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छा काम, उसे रिकॉल कर लेते हैं कि आईसीटीपी जी हमारे पाकिस्तानियों का ब्रेन चाइल्ड है। हमारे एक जाहिर है हमारे ही पाकिस्तानी सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये इनिशिएट किया था। और हमारे जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सर जफरुल्लाह, हाँ, उन दोनों ने मिलकर यूनेस्को के प्लेटफॉर्म पे जो है ये इदारा बनाया। तो ये इदारा जी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है तमाम रिसर्चर्स को, स्पेशली फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और अब तो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर परवेसिव है। तो इसके समर स्कूल्स, इसके विंटर स्कूल्स, इसके जो है ना वो ट्रेनिंग्स अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से शेयर करता हूँ कि आपको भी ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, और इनका कोई ना कोई समर स्कूल को विंटर स्कूल अटेंड करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी वो देते हैं आपको। मैंने भी एक अवेल की अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले, कि आपको आने जाने का ट्रैवल फेयर मिलता है। वहाँ आपको वो जो भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते का वो स्कूल होता है वो अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन ठहराते हैं आपको अपने बड़े खूबसूरत और मैंने हॉस्टल्स में। तो ये जरूर जी, जो भी लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, एमएस एमफिल कर रहे हैं, उन कॉलीग्स को मैं जरूर मोटिवेट करूंगा कि इसकी वेबसाइट को विजिट करें, और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई समर स्कूल, कोई विंटर स्कूल जरूर अटेंड करें।